Yes, so in the previous video, you have seen that what is the concept of primary market, that is also called a new issue market. Now, in this video, you will see that what are the methods of floating new issue in the primary market. Means whatever new issue by the primary market directly to the company, what are the methods of the issue. So here in this, you see various kind of the methods of floating new issue in the primary market. कौन से तरीके से money can be raised in the primary market? So number one method is offer through prospectus. Here, this is the most popular method of raising fund by the public companies in the primary market. This involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. And a prospectus make a direct appeal to the investors to raise capital through an advertisement in the newspaper and the magazine. So what is offered through prospectus? Here the company by the issue of the prospectus directly inviting the public for issue of shares, and that particular money will come to the company. And here the prospectus is used in various kind of the advertisement in the newspaper, also in the magazine. And whatever is the content of the prospectus, it should be according to the company act and according to the SEBI guidelines. According to the company act and according to the SEBI guidelines, and issues must be underwritten and must be listed on at least one stock exchange. For the company, those who are issuing shares, for those company it is necessary to get themselves registered in any one of the stock exchange. Those companies going to the public and issuing the shares for those companies. So what is this method? This is offered through prospectus, and prospectus content should be according to the SEBI guidelines and Company Act 2013. The content of the prospectus should be like this. Now what is done with the help of the prospectus? Direct appeal to the investors. Means with the help of the advertisement in newspaper and magazine, the prospectus is used to make a direct appeal to the investors. Yes, they can come and invest in this particular company, and prospectus should be according to the SEBI guideline. So this is number one, that is offer through prospectus. Company is offering the shares with the help of the prospectors, and it is what? It is a direct appeal to the investors, and it is using the advertisement is used where? In magazine and in newspaper. So this is the first method of the primary market, जहां पर कंपनी किसका यूज कर रही है? प्रोस्पेक्टस का. इसके थ्रू क्या होता है? डायरेक्ट अपील होती है इन्वेस्टर से, और एडवर्टीजमेंट कहाँ होती है? मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर में. और कंटेंट कैसा होना चाहिए प्रोस्पेक्टस का? अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस एंड कंपनी एक्ट 2013. एंड इशू करने के लिए कोई भी शेयर्स टू द पब्लिक, it is necessary to get listed in any one of the stock exchange. तो फर्स्ट मेथड था ये कंपनी का, through which company can issue the securities. Then second method is offer for sale. This is a second method जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट के अंदर the company can issue or raise the fund. Under this method, securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries. That is the second method, offer for sale. First method में क्या था? That is directly raised, directly appeal to the investors. And here in this offer for sale, what is there? Here the offer for sale is through intermediaries. Means company is not directly issuing to the पब्लिक, पर बीच में कौन आ गया? इंटरमीडिएटरीज आ गए, मिडिल मैन आ गए, ब्रोकर्स आ गए, इशूइंग हाउसेस आ गए, स्टॉक ब्रोकर्स आ गए. In this case, company sell the securities on agreed price to brokers. Company sell the securities where? To the brokers. And brokers क्या करेंगे? In turn resell these to the public. जो भी public में से investors हैं, तो brokers will deal the public for the shares or for the securities. That is offer for sale.
व्हाट्स द सेकंड मेथड? इधर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं कर रही सिक्योरिटीज, पर डायरेक्टली किसको सेल कर रही है? टू द इंटरमीडिएटरीज, दैट इज द मिडिल मैन. कौन है वो? इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स. इस केस में क्या होता है? द कंपनी सेल द सिक्योरिटीज एक एग्रीड प्राइस पे टू द ब्रोकर्स, एंड ब्रोकर्स क्या करते हैं? देन इन टर्न सेल टू द पब्लिक. दैट इज ऑफर फॉर सेल, द सेकेंड मैथड जिसके थ्रू कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है. फर्स्ट में डायरेक्टली टू द पब्लिक, सेकेंड में इट्स नॉट डायरेक्ट, बीच में कौन आ गए? इंटरमीडिएटरीज आ गए. नाउ द थर्ड मेथड का नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है? यहाँ पे जो सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट है जो इशू कर रही है कंपनी, वो पब्लिक को नहीं कर रही, पर किसको कर रही है? इंस्टीट्यूशंस को कर रही है. अलग अलग एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं. दैट इज इट हेल्प टू रेज द कैपिटल मोर क्विकली देन पब्लिक इशू. तो प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या होता है? कैपिटल जल्दी रेज हो जाता है. इट इज फास्टर मेथड, क्योंकि क्या कर रही है कंपनी? पब्लिक से रेज नहीं कर रही. किससे कर रही है? इंस्टीट्यूशन से रेज कर रही. कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन है कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनको क्या बोल गया? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. ठीक है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू करना क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है. तो सम कंपनीज therefore cannot afford a public issue and choose the private placement. इसलिए क्या करती हैं कुछ कंपनी? क्या सिलेक्ट करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्ट करती हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक इशू, क्योंकि वो पब्लिक इशू और एक्सपेंसिव हो जाता है. तो प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या बेनिफिट होता है? एक तो कैपिटल जल्दी रेज होता है, दूसरा कुछ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड अदर एनबीएफसीज. इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू मनी रेज करती है कंपनी, बट नॉट विद द पब्लिक. तो दैट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे सिक्योरिटीज किसको अलॉट हो रही हैं, किसको दी जा रही हैं? इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स को, नॉट टू द पब्लिक. दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. ये थर्ड मेथड प्राइमरी मार्केट के अंदर. देन फोर्थ पॉइंट इज राइट इशू. राइट इशू में क्या है? दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब द न्यू इशू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी. इधर राइट इशू की मतलब है कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि जो भी नए शेयर्स हैं क्या होंगे? वो सबसे पहले उनको ये प्रिविलेज दिया जाएगा कि जिस भी रेशियो में उनके पास शेयर हैं, उसी रेशियो में उनको क्या दिए जाएंगे? नए शेयर्स इशू करे जा सकते हैं. That is the privilege given to the existing shareholder to subscribe the new issue of share according to the terms and condition of the company. Shareholders are offered the right to buy the new shares in the proportion to the number of shares they already hold. मतलब एक रेशियो बनेगा कि किसी के पास अगर 3 शेयर्स हैं तो उसको कितना शेयर मिलेगा? 1 मिलेगा. तो इस तरीके का रेशियो बन गया 2:3. ठीक है, तो जिसके पास जितने शेयर हैं उसके ही कुछ रेशियो में अगर न्यू शेयर इशू कर रही है कंपनी, तो उसी के कुछ रेशियो में उनको प्रिविलेज दिया जाएगा. तो न्यू इशू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही क्या करेंगे? रेस करेंगे कैपिटल को. तो दैट इज द राइट इशू. इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है एंड कोई डायरेक्टली पब्लिक नहीं है, पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इधर हैं. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही प्रिविलेज मिल रहा है कि न्यू इशू जो आए हैं वो ही और उसको क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, जिस भी प्रपोर्शन में उनके पास ऑलरेडी शेयर हैं उसके प्रपोर्शन में. ठीक है, जैसे किसी के पास कितने हैं? 100 शेयर्स हैं तो वो 50 शेयर्स ले सकता है. सो अकॉर्डिंगली अब किसी के पास 200 शेयर्स हैं तो वो उसके प्रपोर्शन में कितने शेयर्स लेगा. तो लाइक दिस वे द रेशियो एंड द प्रपोर्शन हैज टू बी मेड कि ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं उन्हीं के प्रपोर्शन में उनको प्रिविलेज दिया जाएगा कि न्यू इशू में से
उनको कितने शेयर्स मिलेंगे. सो दैट इज द राइट इशू. दैट इज द फोर्थ मेथड in the primary market for the issue of securities. Now, the fifth method is EIPO. E means electronic, I means initial public offering, जो अभी लेटेस्ट मार्केट के अंदर है. अब जो भी शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टर्स के पास में नहीं होते. वो किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं उनके डीमेट अकाउंट के अंदर. ठीक है. तो अब उनके पास फिजिकल फॉर्म में तो क्या नहीं होते, शेयर्स नहीं होते, पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं. तो कंपनी प्रपोजिंग टू इशू द कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एंटर एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज. तो EIPO के लिए क्या करना पड़ता है कंपनी को? अगर इलेक्ट्रॉनिकली जो शेयर्स हैं वो इशू करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ में आगे इशू करने के लिए द कंपनी हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. रजिस्टर करने के बाद, एक एग्रीमेंट रजिस्टर करने के बाद, दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO. That is, SEBI registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting application. इस केस में क्या करेगा? जो SEBI registered brokers होंगे वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे फिर कंपनी के पास कि इतने इतने एप्लीकेंट्स का ऑर्डर आया है, वो शेयर्स परचेज करना चाहते हैं. द इशूअर कंपनी शुड ऑल्सो अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द exchange. The issuer company can apply for listing the securities on any exchange other than the exchange through which it is offered its securities. The lead manager coordinate all the activities among intermediaries connected with the issue. तो इस केस में जितनी भी डीलिंग्स हैं, जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो किसके थ्रू डील कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं. तो इस केस में इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. यानी जो न्यू इशू हो रहा है, दैट इज इनिशियली जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर करा है, क्या? सिक्योरिटीज ऑफर करा है. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के साथ डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा. एंड इसी को क्या बोलते हैं? IPO, EIPO. और इस केस में जो डीलिंग्स होंगी वो किसके थ्रू होंगी? ब्रोकर्स के थ्रू. एंड ब्रोकर्स कौन होगा? सब SEBI से ही शुड बी रजिस्टर्ड. जो ब्रोकर्स होंगे दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद द SEBI. वो ही एप्लीकेशन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. हु वांट टू परचेज द शेयर. फिर आगे की जो भी डीलिंग्स होगी दैट इज ऑनलाइन. सो दैट इज EIPO. तो ये 5 मेथड्स थे किसके? प्राइमरी मार्केट के. These are the 5 methods of the primary market. Number 1, offer through prospectus. Offer through prospectus के अंदर prospectus का content should be according to the Company Act 2013 and SEBI guidelines के according होना चाहिए. And ये prospectus से क्या होता है? Direct appeal to the investor to raise the capital. And किस तरीके से करा जा सकता है ये? Advertisement in the newspaper and मैगजीन. देन सेकेंड मेथड में आपने देखा ऑफर फॉर सेल. इसके अंदर डायरेक्ट अपील नहीं होती पब्लिक से, पर बीच में इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं लाइक इशूइंग हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकर्स. थर्ड मेथड में देखा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट. इसमें शेयर्स किसको इशू हो रहे हैं? इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इशू हो रहे हैं. यहाँ पर पब्लिक बीच में इन्वॉल्व नहीं है. और ये मेथड क्या है? फास्टर मेथड है एज कंपेयर टू इशू टू पब्लिक. देन नेक्स्ट इज राइट इशू. सो व्हाट इज राइट इशू? दिस इज द प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कि उनके पास ऑलरेडी जितने शेयर्स हैं उसी के प्रपोर्शन में उनको न्यू इशू में से शेयर्स मिलेंगे. सो दे बाय the new shares accordingly in proportion to the number of the shares they already hold. So that is the right issue, the privilege giving to the shareholders. Then EIPO, that is electronic initial public offering. यहाँ पे डीलिंग किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है. एंड फॉर दिस कंपनी नीड टू बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज
ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम डीलिंग्स के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड ये जो डीलिंग्स होगी इसमें कौन है बीच में, ब्रोकर्स होंगे, एंड दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, एंड दे एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर द ऑर्डर्स, for the orders of the shares. Then the issuer company appoint the registrar to issue the shares in the electronical form with the help of the exchange. So these are the 5 methods of floating new issue in the primary market.